Hello everyone. So in the last class we discussed what are oscillators, the different classification of oscillators. Then we saw the tank circuit, that how we can produce the oscillations in a tank circuit. We saw that those oscillations are the damped oscillations. Then we saw how we can create undamped oscillations in an oscillator that can be created if we consider the बरखासन criteria for sustained oscillations. तो last class में हमने देखा था what is Barkhasan's criterion for sustained oscillations, and this criteria जो है it can be achieved with the help of positive feedback in oscillators. तो ये हमने last class में देखा था. Now today we will see the different types of oscillators. The first one is the common base collector tuned oscillator. Now इसका मतलब क्या है? कॉमन बेस मीन्स जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा. ठीक है. एंड व्हाई वी यूज दिस ट्रांजिस्टर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल. देन इट इज सेइंग द कलेक्टर ट्यून्ड. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कलेक्टर ट्यून्ड? इसका मतलब है हमारे पास एक टैंक सर्किट होगा. That means a LC circuit will be there that will be connected to the output circuit. इसीलिए हम इस oscillator को बोलते हैं the common base collector tuned oscillator. In this oscillator we have a tank circuit consisting of capacitance and inductance that is connected to the output circuit, and we have a transistor which is in the common base configuration, and this transistor is used to amplify the signal. Okay. Now what is the circuit diagram? This is the circuit diagram of the common base collector tuned oscillator. यहाँ पर देखो we have a battery. ठीक है. That is connected in series with the inductance coil L of a transformer through a key K. Now ये L और L1 हमारे क्या हैं? That is basically a transformer where L is representing the primary coil of the transformer and this L1 is representing the secondary of the transformer. और ये जो हमने बैटरी कनेक्ट करी है that is connected to the base collector circuit. So here this collector is connected to the positive terminal of the battery. So the collector base junction जो है हमारा that is the reverse biased junction. ठीक है. collector base जो है हमारा that is connected in the reverse bias mode with the help of this battery that is connected in between the collector and base of the circuit. Now next ये जो हमारा सेकेंडरी है ट्रांसफॉर्मर का L1, ये हमारा कनेक्टेड है बिटवीन द एमीटर एंड बेस सर्किट. ठीक है. तो हमारे पास क्या है? वी हैव दिस बैटरी. ठीक है. दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्राइमरी ऑफ द transformer that is L. ठीक है. And this is connected through a key K, and this battery is connected in between the collector and base of the circuit. Next we have the secondary of the transformer that is L1. This is connected in between the emitter base circuit. ठीक है. And here we have this variable capacitor C. Now this C and L जो है it forms a tank circuit. ठीक है. ये हमारा टैंक सर्किट बनाता है और ये किस तरीके से वर्क करता है, इसमें किस तरीके से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था. Next we have another inductance coil. This is L prime. This is connected with the antenna and the अर्थ. इसकी जो हमारी इंडक्टेंस कॉइल है L प्राइम, इसको हमने अर्थ किया है एंड दिस इज कनेक्टेड विद द एंटीना. ठीक है. और हमारा जो बेस कलेक्टर सर्किट है दैट इज रिवर्स बायस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी. ये हमारा सर्किट डायग्राम है. ठीक है. अब हमें देखना है कि हाउ वी कैन क्रिएट अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस इन दिस कलेक्टर tuned oscillator in which the transistor is connected in the common base configuration. So for this what we'll do first, we first introduce a plug at the key K.
जैसे ही हमने यहाँ पे प्लग को इंट्रोड्यूस किया, ये हमारा सर्किट कनेक्ट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायस्ड कलेक्टर बेस्ड सर्किट व्हाट विल हैपन, कलेक्टर करंट विल फ्लो। हमारा बेस कलेक्टर सर्किट जो है दैट इज रिवर्स बायस्ड। जैसे हमने प्लग को इंट्रोड्यूस किया एट द की के, कलेक्टर करंट जो है इट विल फ्लो थ्रू दिस बेस कलेक्टर सर्किट। नाउ कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, हमारे पास यहाँ पे दो कॉइल्स हैं L एंड L1, ठीक है। हमारा ये ट्रांसफॉर्मर है, L is representing the primary coil, L1 is representing the secondary coil. Now what will happen, जैसे ही कलेक्टर करंट जो है वो फ्लो करेगा, इट इज इंक्रीजिंग। हमें पता है इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी हमारा जो करंट है वो इंक्रीज होता है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद दिस कॉइल दैट विल आल्सो इंक्रीज, व्हिच विल रिजल्ट इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने प्लग को इंट्रोड्यूस किया एट द की के, then the collector current will flow through this base collector circuit. Because of this flow of collector current, what will happen, magnetic flux जो है linked with the coil वो change होगी, because of that जो हमारी induced EMF है वो produce होगी, ठीक है। एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग वाया म्यूचुअल इंडक्शन। हमने सबसे पहले यूनिट में पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास एक ये प्राइमरी कॉइल है एंड देन वी हैव दिस सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो क्या होता है, अगर प्राइमरी कॉइल कि यहाँ पर हमारा जो करंट है वो चेंज होता है, देन ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती है इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। वही फिनोमेना यहाँ पे लगेगा। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी इन द सेकेंडरी कॉइल L1। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इट विल बी feed it to the input of the transistor। ये जो हमारी induced EMF generate हुई थी, now it is acting as a feedback to the transistor। ये induced EMF जो है it will be considered as the voltage in the emitter base circuit, ठीक है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो इस तरीके से इंड्यूस होती है कि वो अपोज करती है उसकी कॉज को जिसने इसको प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस किसने किया इसको, द रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायसिंग जो थी हमारी कलेक्टर बेस्ड सर्किट की, उसने इस ईएमएफ को इंड्यूस किया, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा अब एमीटर बेस्ड सर्किट होगा, नाउ इट विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो इस तरीके से होगी दैट इट विल गिव द फॉरवर्ड बायस टू द एमीटर बेस्ड सर्किट। ना अगर अब एमीटर बेस्ड सर्किट हमारा फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, देन व्हाट विल हैपन, एमीटर करंट जो है अब वो इंक्रीज होगा। एमीटर करंट अगर इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है। सो दिस विल इंक्रीज द कलेक्टर करंट। नाउ ये जो इंक्रीजिंग कलेक्टर करंट है ये क्या करेगा, इट विल चार्ज दिस कैपेसिटर C, ठीक है। जो हमारा इंक्रीजिंग कलेक्टर करंट है इट विल नाउ चार्ज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जब कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, अब ये डिस्चार्ज होगा थ्रू द इंडक्टेंस कॉइल L, दैट विल सेट अप द ऑसिलेशंस इन द टैंक सर्किट और इन द LC सर्किट। ये LC सर्किट किस तरीके से वर्क करता है ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब क्या है, कलेक्टर करंट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आके कलेक्टर करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा, इट विल बिकम सैचुरेटेड। जब कलेक्टर करंट हमारा मैक्सिमम हो गया ना, दैट मींस इट विल बिकम कांस्टेंट। अब जो है हमारा करंट जो है नाउ इट इज नॉट चेंजिंग, इट हैज बिकम कांस्टेंट। तो कलेक्टर करंट के कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है थ्रू द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, दैट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू L1 दैट विल स्टॉप। इंड्यूस ईएमएफ अगर स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा कलेक्टर करंट अब डिक्रीज होगा ना। कलेक्टर करंट डिक्रीज हो रहा है दैट मींस इट इज नॉट चेंजिंग। तो कलेक्टर करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी इन दी
कॉइल L1 और अब जो हमारी इंड्यूस्ड EMF होगी दैट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो नाउ दिस विल रिवर्स बायस द एमीटर बेस जंक्शन. अब हमारा एमीटर बेस जंक्शन जो इनिशियली फॉरवर्ड बायस हुआ था अब वो रिवर्स बायस हो गया. तो रिवर्स बायस होने की वजह से क्या होगा, नाउ इट विल डिक्रीज द एमीटर करंट. एमीटर करंट डिक्रीज होगा तो हमारा कलेक्टर करंट जो है वो भी डिक्रीज होगा. एक पॉइंट पे आके कलेक्टर करंट हमारा जीरो हो जाएगा. जब कलेक्टर करंट हमारा जीरो हो गया दैट मींस नाउ इट इज नॉट चेंजिंग. तो अब फिर से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है थ्रू L1 इट विल अगेन स्टॉप. ठीक है, फिर क्या होगा, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू L1 जो है वो हमारी स्टॉप हो गई. अब इस वजह से क्या होगा, फिर से एमीटर करंट जो है अब वो बढ़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होता रहेगा. ठीक है, सो द वेरिएशंस ऑफ EMF थ्रू L that will set up similar variations in the output antenna circuit containing the inductance coil L prime. ठीक है, which is connected to the antenna and it is also earthed. So ये जो हम तो किस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है ऑसिलेटर, जो हमारा टैंक सर्किट है LC वो जो है हमारा that is setting up a sequence of oscillations. And why this sequence of oscillations is set up in this LC circuit? This is set up because of the charging and discharging of the capacitor. ठीक है, और यहाँ पर हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑसिलेशंस है वो डैम्प्ड ना हो, ऑसिलेशंस हमारे अनडैम्प्ड हो. तो वो किस तरीके से हो रहा है, वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी सेकेंडरी कॉइल L1 है वो हमारी चार्ज हो रही है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दैट इज नाउ fed back to the transistor. So transistor जो है it is amplifying the signal that is taken as the output. So आउटपुट का कुछ पार्ट जो है वो हमारा फीडबैक हो रहा है टू द सिस्टम. ठीक है, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव फीडबैक. और हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था with the help of positive feedback we can have the sustained oscillations. This is the necessary condition to get the sustained oscillations which is nothing but the Barkhasan क्राइटेरिया जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा था. तो वहां की जो कंडीशन थी वो यहाँ पे हमारी फुलफिल हो रही है. LC सर्किट की हेल्प से वी आर गेटिंग दी ऑसिलेशंस. उन ऑसिलेशंस को हमें अनडैम्प्ड रखना है. दैट इज डन बाय दिस ट्रांसफॉर्मर. दिस जो सेकेंडरी कॉइल है हमारी ट्रांसफॉर्मर की, इट इज प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव फीडबैक टू दिस ट्रांजिस्टर. ठीक है, जो हमारा आउटपुट का कुछ पार्ट है दिस इज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ दिस transistor which is the necessary condition to have the sustained oscillations. Now next what we have next is the common emitter collector tuned circuit. Collector tuned oscillator ये हमारा क्या है, देखो कलेक्टर ट्यून्ड का मतलब क्या है. कलेक्टर ट्यून्ड का मतलब हमारा है कि हमारे पास जो है एक टैंक सर्किट होगा that is consisting of capacitance and inductance and that is connected to the output circuit. कॉमन एमीटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम ट्रांजिस्टर ले रहे हैं दैट विल बी इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो पहले हमारा था कॉमन बेस कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर, अब हमारा है कॉमन एमीटर कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर. दोनों सर्किट्स में बस एक ही डिफरेंस है, वहां पर इनिशियली हमने ट्रांजिस्टर जो है उसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया था, इसमें हम ट्रांजिस्टर जो है उसको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सेट करेंगे. So in this kind of oscillator we have a tank circuit that is connected to the output and we have a transistor that is in the common emitter configuration and it is used to amplify the signal. ठीक है, और ये हमारा सर्किट जो है किस तरीके का है, this is the circuit of the common emitter collector tuned oscillator.
ये जो हमारा सर्किट है दिस इज विदाउट बायसिंग, और ये जो हमारा सर्किट है दिस इज विद प्रॉपर बायसिंग। यूजुअली हम बायसिंग यूज करते हैं टू स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट। और कौन सी बायसिंग हमारी बेस्ट होती है, वो होती है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो देखो यहाँ पर हमारी जो बायसिंग है वो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। वी हैव दीज टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 एंड वी हैव दिस एमीटर रेजिस्टर एज वेल। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं हमारे R1, R2 एंड RE, इनका काम क्या होता है, दे प्रोवाइड अ डीसी बायस टू द ट्रांजिस्टर। एंड व्हाई वी यूज द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टू स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा विदाउट बायसिंग है, नीचे वाला सर्किट हमारा विद बायसिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारा ये जो सर्किट है ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर भी जो है वी हैव अ टैंक सर्किट दैट इज कनेक्टेड, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ दिस वेरिएबल कैपेसिटर C एंड दिस कॉइल L। तो L हमारा क्या है, दिस इज द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये जो हमारा L1 है दिस इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफॉर्मर का, दैट मींस जो L1 है दैट इज कनेक्टेड टू द बेस सर्किट। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है दिस इज कनेक्टेड इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो हियर वी कैन से दैट कि जो हमारा कलेक्टर बेस सर्किट है, और यू कैन से जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है दैट इज रिवर्स बायस्ड। और जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन है वो हम देखेंगे यहाँ पे वो किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फीडबैक फॉरवर्ड या रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा यही है। और जो आउटपुट हम मेजर करेंगे दैट विल मेजर अक्रॉस दिस इंडक्टर L2। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, जैसे ही हमने इस की को प्रेस किया देन कलेक्टर करंट विल फ्लो। ठीक है, कलेक्टर करंट अगर हमारा फ्लो होगा then that will produce an induced EMF in the secondary of the transformer L1 via mutual इंडक्शन। वो मैंने ऑलरेडी बताया था अभी इससे पहले। वर्किंग जो है इसकी सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिस्टर है दैट इज इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कलेक्टर टर्मिनल जो है हमारा दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हियर आल्सो। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कलेक्टर करंट फ्लो करेगा देन वाया म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारी L1 कॉइल है वहां पर EMF जो है वो इंड्यूस होगी, that will provide the forward bias to the emitter based circuit। emitter based circuit जब हमारा forward bias होगा तो क्या होगा, हमारा emitter current बढ़ेगा। emitter current बढ़ेगा तो collector current भी बढ़ेगा। IE is equal to IB plus IC। अब ये जो हमारा collector current बढ़ रहा है this will not charge the plates of this capacitor C। और धीरे धीरे कलेक्टर करंट जो है वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा और जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, दैट विल डिस्चार्ज थ्रू दी inductance coil L and that will produce the oscillations in the tank circuit। और जब हमारा कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो गया दैट मीन्स वो कांस्टेंट हो गया, तो उस पॉइंट पे क्या होगा हमारा, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल L1। जैसे ही हमारा कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाएगा उस केस में जो इंड्यूस्ड EMF है अक्रॉस दिस इंडक्टेंस कॉइल L1 दैट विल स्टॉप। इंड्यूस्ड EMF जब हमारी स्टॉप हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, अब जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू दिस कॉइल L1 दैट विल डिक्रीज। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा हमारा, there will be now an induced EMF in the opposite direction। क्यों induced EMF होगी in the opposite direction, जब हमारा करंट मैक्सिमम हो गया then induced EMF through L1 जो है that will stop which will result in the decreasing of collector current। अब collector current हमारा decrease हो रहा है, it is changing। तो अब collector current अगर हमारा change हो रहा है that will again induce the EMF in the coil L1। तो लेकिन अब जो EMF इंड्यूस होगी नाउ इट विल इंड्यूस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, जो एमीटर बेस सर्किट है नाउ इट विल बी रिवर्स बायस। तो इस वजह से हमारा क्या होगा,
एमीटर करंट डिक्रीज होगा। एमीटर करंट जब हमारा डिक्रीज होगा देन इट विल डिक्रीज दी कलेक्टर करंट। कब तक डिक्रीज करेगा? जब तक कलेक्टर करंट हमारा जीरो नहीं हो जाता। कलेक्टर करंट अब हमारा जीरो हो गया, दैट मींस कांस्टेंट हो गया, तो फिर से जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू L1 जो है वो हमारी जीरो हो जाएगी। फिर अब क्या होगा? एमीटर करंट हमारा जो है वो हमारा अब इंक्रीज होने लग जाएगा, एमीटर करंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा? हमारा फिर से एमीटर बेस्ड सर्किट जो है अब वो हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन इट। और ये प्रोसेस जो है ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस जो है ना इट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो इस तरीके से हमारा कैपेसिटर जो है उसकी जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है that will set up a sequence of oscillations in the tank circuit। और ये जो हमारे oscillations है इनको हमें undamped रखना है। वो हमारे undamped कैसे रहेंगे? वो undamped रहेंगे because of the secondary of the transformer, that is because of L1 which will provide the feedback to the ट्रांजिस्टर। और ये हमारा कौन सा फीडबैक है? दिस फीडबैक इज द पॉजिटिव फीडबैक विच इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। अब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक चीज का ध्यान और रखना है, हमारा फेज शिफ्ट का ध्यान रखना है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमको पता है जो हमारा ट्रांजिस्टर है दैट विल इंट्रोड्यूस अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी इंट्रोड्यूस करेगा अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो इस वजह से क्या होगा? हमारा जो इन टोटल हमारे पास फेज शिफ्ट होगा वो 360 डिग्री का हो जाएगा। देखो ये लाइन यहाँ पे लिखी है, सिंस अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री इज प्रोवाइडेड बाय द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड एन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द transformer, the feedback in the base circuit is positive. The transistor amplifier provides sufficient gain for oscillator action to take place। जब हमने बरखास्तन क्राइटेरिया पढ़ा था फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, वहां पे मैंने जो है ये चीज बताई थी कि बरखास्तन क्राइटेरिया जो हमारा होता है उसमें 3 पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। एक पॉइंट है कि जो हमारा एम्पलीफायर है इट मस्ट हैव पॉजिटिव फीडबैक। सेकेंड था हमारा जो लूप गेन वैल्यू है A इंटू बीटा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड हमारा क्या था? जो ओवरऑल फेज शिफ्ट था बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट दैट मस्ट बी इक्वल टू 360 और 0 डिग्री। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलरेडी एक फेज डिफरेंस 180 डिग्री का इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है इट विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री so that in total we'll get a 360 degree phase shift which is the necessary condition for producing the sustained oscillations in a oscillator। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमने विद बायसिंग करा है ये क्यों करा है। देखो हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड RE। ये हमारे क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग दी वोल्टेज डिवाइडर डीसी बायसिंग टू डी ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे हमारे 2 कैपेसिटर्स और हैं C प्राइम और CE। इनका फंक्शन क्या है? ये जो हमारे C प्राइम और CE हैं these are the bypass capacitors for the resistors R2 and RE respectively। C prime जो है हमारा this is the bypass capacitor for the resistor R2। CE हमारा है bypass capacitor for this resistance RE। इनका फंक्शन क्या है? देखो अगर हमारे पास ये जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर है CE अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? जो हमारे amplified AC oscillations है now they will fall across this emitter resistance RE, so it will affect the input voltage VBE, the base emitter voltage of the transistor, because VBE is equal to VB minus VE। हम already बहुत बार देख चुके हैं the function of this bypass capacitor CE। अगर ये नहीं होगा then we'll have the amplified AC oscillations across this emitter resistor RE which will definitely affect the base to emitter voltage of the transistor। अब ये AC है तो ये VBE जो है उसमें AC oscillations ला रहा है, so this can change the conditions of DC biasing। oscillator हमारा होता क्या है? It basically converts DC from a power supply to an AC
सिग्नल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस बाईपास कैपेसिटर, ताकि जो हमारे एम्पलीफाइड एसी ऑसिलेशंस है दे विल नॉट फॉल अक्रॉस द एमीटर रेजिस्टेंस आर ई, वो हमारे कैपेसिटर के थ्रू जो है पास ऑन हो जाए। नेक्स्ट हमारा है व्हाई टू इंक्लूड दिस कैपेसिटर सी प्राइम। सी प्राइम को अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो हमारी फीडबैक वोल्टेज है that is included in the secondary coil L1, it will not go to the input of the transistor as some voltage जो है हमारी that will be drop across R2 instead of completely going to the input of the transistor. अगर हम C प्राइम को नहीं लगाएंगे तो जो हमारी फीडबैक वोल्टेज आई है because of the secondary coil L1 of the transformer that will not go to the input of the transistor as some voltage जो है that will drop across this resistance R2, ठीक है। तो that is why we use these two bypass capacitors C prime and CE across the resistors R2 and RE respectively. Next, it may be noted that the output of the oscillator is drawn through the inductance coil L2. Output जो है हमारा it is generally drawn using inductive coupling between the inductance coil L of the tank circuit. The output can be drawn even from the part of the inductance coil L as oscillations are present throughout it. The output can further be connected to the input of the next stage or to a power consuming device. The output may be radiated in the form of electromagnetic waves if we connect one terminal of L2 to antenna and other to the earth. जैसे हमने कॉमन बेस कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर में जो हमारे पास इंडक्टेंस कॉइल थी L प्राइम, उसको हमने कनेक्ट किया था टू दी एंटीना एंड टू दी अर्थ। एक टर्मिनल को हमने एंटीना से कनेक्ट किया था, एक टर्मिनल को हमने अर्थ किया था। अगर हम ऐसे करते हैं देन वी कैन यूज दिस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं दैट वी आर मेजरिंग अक्रॉस द इंडक्टेंस कॉइल L2. So this is the function of the common emitter collector tuned oscillator. फंक्शनिंग जो है वो सेम है, कॉमन बेस के जैसी ही है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है। कॉमन बेस में जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और कॉमन एमिटर में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ठीक है। दोनों में इन जनरल जो हमारी वर्किंग है वो सेम होती है। क्या होता है, सबसे पहले हमने जब की को प्रेस कर देते हैं हमारा कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज होता है। कलेक्टर करंट जब हमारा इंक्रीज होगा वो हमारा कैपेसिटर को चार्ज कर, जब कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो हमारा डिस्चार्ज होता है थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है कैपेसिटर की, इट विल सेट अप अ सीक्वेंस ऑफ ऑसिलेशंस इन द टैंक सर्किट। फिर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये जो ऑसिलेशंस है ये इंड्यूस करते हैं वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। फिर क्या होता है, हमारा ये जो वोल्टेज है हमारी, दिस इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो इट इज एम्पलीफाइड एंड देन फेड टू द कलेक्टर सर्किट। तो ये जो हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज है नाउ इट इज एक्टिंग एज द पॉजिटिव फीडबैक, और ये फीडबैक जो है वो, इसका मतलब क्या है, जो पार्ट ऑफ हमारा आउटपुट है दैट इज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर। और ये किस तरीके से फीडबैक हो रहा है, दिस इज फीडबैक विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा ये ऑसिलेटर वर्क करता है, और इस तरीके से जो लॉसेस हैं टैंक सर्किट में, एलसी सर्किट में जो लॉसेस होते हैं वो हमारे कंपनसेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक। और अगर हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो वहां पर जो है ऑलरेडी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है वो इंट्रोड्यूस करता है फेज शिफ्ट 180 डिग्री। तो उस केस में एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय द ट्रांसफॉर्मर, सो दैट वी कैन गेट इन टोटल ऑफ 360 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज ऑसिलेटर्स वर्क। Now next what we have this common emitter base tuned oscillator. इसका मतलब क्या है,
कॉमन एमीटर का मतलब क्या है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है दैट इज कनेक्टेड इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बेस ट्यून्ड का मतलब क्या है, जो अब हमारा एलसी सर्किट है दैट इज कनेक्टेड टू द बेस। इनिशियली जो हमने अभी दो ऑसिलेटर्स देखे उसमें जो हमारा टैंक सर्किट था दैट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट सर्किट। यहाँ पे जो हमारा टैंक सर्किट है दैट विल बी कनेक्टेड टू द इनपुट सर्किट एंड द ट्रांजिस्टर जो है दैट इज इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। So in this case tank circuit जो है that is included in the base circuit instead of the collector circuit. इसलिए हमने इसको base tuned कहा है, collector tuned नहीं कहा है, ठीक है। जो इसका सर्किट डायग्राम है, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमीटर बेस ट्यून्ड ऑसिलेटर। यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंसेस हैं ये R1, R2, RE, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द वोल्टेज डिवाइडर DC बायसिंग टू दिस circuit which helps in stabilizing the operating point of the transistor। और तीनों ही केसेस में जो हम ट्रांजिस्टर ले रहे हैं वो NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ऑफ रेजिस्टेंस RE and this bypass capacitor CE, this combination is known as the stabilizing circuit। Why stabilizing circuit? क्योंकि जो हमारा ये combination है this is required so that there will not be any change in the conditions of DC biasing, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। So we can say that this combination of RE and CE is basically forming the stabilizing circuit। Now ये जो हमारी इंडक्टर है, इंडक्टेंस कॉइल L है और ये जो C है, this is forming the tank circuit। The variable capacitor C and the inductance coil L जो है they will form a tank circuit which is here connected to the emitter base circuit। पहले जो है ये हमारा कनेक्टेड थी कलेक्टर बेस सर्किट में। यहाँ अगर हम कॉमन बेस की बात करें और अगर हम कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा कलेक्टर एमीटर सर्किट में कनेक्टेड था, ठीक है। तो हमारे इनिशियली दोनों केसेस में जो टैंक सर्किट था दैट वाज कनेक्टेड टू द आउटपुट सर्किट। यहाँ पर जो हमारा टैंक सर्किट है दैट इज कनेक्टेड टू द इनपुट सर्किट इंस्टेड ऑफ द आउटपुट सर्किट, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, इंडक्टेंस कॉइल जो हमारे L और L1 है दे आर फॉर्मिंग द ट्रांसफॉर्मर, वेयर L जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर और जो L1 है हमारा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन हियर, किस तरीके से ये काम करेगा, as in the case of collector tuned oscillator, a total phase change of 360 degree is introduced equally by the common emitter configuration and the transformer। यहाँ पे भी जो हमारा ट्रांजिस्टर है that is in the common emitter configuration, that means ये हमारा फेज डिफरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा 180 डिग्री का। तो जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा वो भी इंट्रोड्यूस करेगा फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, so that we have overall phase shift of 360 degree which is also the necessary condition for the sustained oscillation। तो यहाँ पे वर्किंग हमारी कैसे होगी, जब हम की को प्रेस करेंगे क्या होगा, देखो जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VCC। तो जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होगा। कलेक्टर करंट बढ़ने की वजह से इंड्यूस्ड EMF जो है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल L1। Since coil L1 जो है this is inductively coupled with this coil L, so induced EMF or you can say feedback voltage जो है that will be set up in this coil L। तो ये जो हमारी feedback voltage है this will increase the emitter current which will in turn increase the collector current। कब तक collector current बढ़ेगा, till the saturation is reached, till the collector current becomes maximum। जब collector current हमारा maximum हो जाएगा उस केस में जो हमारा कैपेसिटर है वो भी फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा कलेक्टर करंट सैचुरेट हो गया, इंड्यूस्ड EMF जो और यू कैन से जो हमारी फीडबैक वोल्टेज है इन द बेस सर्किट दैट विल फॉल टू 0। तो अब क्या होगा, कैपेसिटर जो है नाउ इट विल डिस्चार्ज थ्रू L that will now give the reverse bias to the emitter base circuit।
अब जब हमारा एमीटर बेस सर्किट रिवर्स बायस हो जाएगा तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। कलेक्टर करंट डिक्रीज होने की वजह से फिर से जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमारी सेटअप हो जाएगी थ्रू L1 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो करस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारी सेटअप हो जाएगी इन दी कॉइल L, that will further decrease the emitter current and hence collector current। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होगा till the collector current जो है it reduces to the cut off value or you can say that it becomes minimum। so अब क्या होगा, कैपेसिटर जो है it will now again charge but now it will charge in the opposite direction। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है it will be repeated again and again। so the cycle of operation continues so long as enough energy is supplied by this battery VCC to compensate for the losses in the LC oscillations। तो ये है हमारा the collector, the common emitter base tuned oscillator। वर्किंग जो है वो हमारी तीनों में as such सेम है। हमारे पास एक टैंक सर्किट है that will produce the oscillations, ठीक है। हमारे पास फीडबैक है that is required to have the sustained oscillations। फीडबैक हमें कैसे मिल रहा है, फीडबैक हमें मिल रहा है वाया दी ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो तीनों की फंक्शनिंग जो है वो हमारी सेम है। एलसी सर्किट की जो हमारी फंक्शनिंग होती है वो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करी थी, वही फंक्शनिंग जो है इन तीनों में हो रही है। बस अब हमें एलसी सर्किट से जो डैम्ड ऑसिलेशंस मिल रहे हैं उनको अनडैम्ड रखना है। तो उसको अनडैम्ड रखने के लिए वी शुड हैव दी बरखसन क्राइटेरिया। बरखसन क्राइटेरिया हमारा क्या कहता है कि हमें जो है पॉजिटिव फीडबैक जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव फीडबैक जो है वो सप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। और हमने किस चीज का ध्यान रखा, जो हमारा ओवरऑल फेज शिफ्ट है दैट शुड बी 0 और 360 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कॉमन बेस कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर, the common emitter collector tuned oscillator and the common emitter base tuned oscillator, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके बाद जो है हमारे सिर्फ दो ऑसिलेटर्स रह गए हैं, हार्टले ऑसिलेटर एंड द कॉलपिट ऑसिलेटर। उसके बाद तुम्हारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो वील डू दीज टू ऑसिलेटर्स इन द नेक्स्ट क्लास।